Okay, so now today we start the new chapter, chemical bonding chapter. Okay, in the Fulcrum. Okay, okay. With the first, write the definition of chemical bonding. What does it mean by chemical bonding? Do you know anyone? Yes, Zaid Saqib. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. Yes, what does it mean by chemical bonding? Ariba, Aisha, Ashfaq, Insha, Shadman, Khirat, Samin. Okay, no problem. Write down the definition of chemical bonding. Force of attraction between two or more than two atoms. Force of attractions between two or more than two atoms. They are chemically hold together. It's called chemical bonding. I repeat again, force of attraction between two or more than two atoms. They are chemically hold together. It's called chemical. We have three types of chemical bonding. Number one, ionic bonding. Second is covalent bonding. Number third is metallic bonding. Ionic bond, covalent bond, and third one is metallic bond. So inshallah we will study the three types of chemical bonding in this chapter. Number one, ionic bond. Okay. First write the properties of ionic bond. Okay, write down the properties of ionic bond. Ionic bond form between metals and non-metals. Okay, done. Number one properties is ionic bond form between metal and non-metals. Second, write down the second point. Ionic bond form when the complete transfer of electrons from metal to non-metals. Ionic bond form when complete transfer of electrons from metals to non-metals. यानी कि ionic compound जब भी form होता है तो इसमें electron completely transfer होते हैं from metals to non-metals. Sir, can you repeat? Ionic compound form when complete transfer of electrons from metal to non-metals. Done, all of you? Any problem? No, sir. Done. Okay. Write down the number third point. They have high melting and boiling point. They have high melting and boiling point. Okay, next point, number 4 point. It is a very important point, right? ये बहुत ज़्यादा important point है एग्जाम में से बहुत से अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप लोग बोल्ड कर लीजिएगा मार्क कर लीजिएगा ये पॉइंट्स आपको लाजमी जो मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ देखो आपको ये प्रॉपर्टीज जब पता होंगी ना देन आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो अदरवाइज प्रॉब्लम होगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज
ionic compound do not conduct electricity in solid state. Ionic compound do not conduct electricity in solid state. They conduct electricity in aqueous or molten state. यानी जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड फॉर्म में अगर हो हमारे पास सॉलिड हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, नॉन कंडक्टर होते हैं. ओनली सिर्फ किस स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक्वस और मोल्टन. यानी कि आपने इसको मेल्ट कर दिया देन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे आयनिक कंपाउंड, या आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया उसको एक्वस फॉर्म में लेकर आ गए देन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट ओनली एक्वस और मोल्टन फॉर्म or molten state. Done. Sir, can you repeat? How many points we have done? 4. 3 points. 3. Three. No, I think 4 points. Number Yes, one. sir, 4. Yes, 4. Yes, 4. Okay. Ionic compound do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in aqueous or molten state. Okay. Yes, sir. Done. Next Yes. point. They form giant crystal lattice structure. Regular structure. और रेगुलर स्ट्रक्चर मींस आयनिक कंपाउंड जो होते हैं कि कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ. इसके साथ आप थोड़ा सा बना भी लेना. लाइक दिस क्यूबिक फॉर्म में होते हैं ना, ये रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और लाइक दिस क्यूबिक फॉर्म में होते हैं. दिस ठीक है, इसे कहते हैं क्रिस्टलेटेड स्ट्रक्चर. Draw another trigram. This is the regular arrangements of atoms in ionic compound. Done. Okay, done. Yes, all of you. Yes, sir. Any question? Yes, sir. Any problem? No, sir. No problem. Okay. So how many points we have done? 6 or 7? 6. 7. 6. 6. Okay, 6 point now. तो आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे 8 to 9 पे. ठीक है. 6 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप लोग स्टडी करेंगे, बुक निकालेंगे, आप लोग फर्दर देखेंगे, और 3 to 4 पॉइंट्स आपने लिखना है. हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 to 4 पॉइंट्स. यानी कि आप जो के पास मेरे पास जो कॉपी आएगी उसमें 9 to 10 पॉइंट्स होने चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, 6 मैंने लिखवा दिए. आप लोगों ने कितना करना है होमवर्क में? 3 to 4 पॉइंट्स आपने और फर्दर ऐड करना, अच्छी तरह से स्टडी करके, बुक से ऐड करें, रीड करें इस चैप्टर को इंटरनेट से, डिफरेंट बुक से, तो आपको अच्छी तरीके से चैप्टर भी आपको रिव्यू हो जाएगा, देन आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे. राइट. और ये जो मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क की कॉपी आपसे मैं 10 सितंबर को स्कूल में मंगवाऊंगा. आपको कॉपी आपकी बिल्कुल फेयर में चेक करूंगा. ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, अपनी कॉपीज आप बनाना शुरू कर दें. अगर आप सर कॉपी में सिर्फ फॉल्टम का काम होगा? यस, फॉल्टम का. क्यों, और क्या काम करना है? सर कुछ नहीं, मुझे लगा कि उसमें जीरो टर्म का भी काम करना है. बिल्कुल, जीरो टर्म का भी करते हैं. अगर बचा हुआ है आपके पास, आपने जीरो टर्म में कॉपी बाई की थी, अगर जीरो टर्म को कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप एक पेज पे फॉल्ट टर्म की हेडिंग डाल दें.
नेक्स्ट, और फॉल टर्म का सिलेबस लिखें, सिलेबस पोर्टल पे अपलोड है। सिलेबस लिखने के बाद आप इंडेक्स बनाएं, इंडेक्स बनाने के बाद वो फॉल टर्म काम करता है, अलग कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास है तो ठीक है। और ये कॉपी इंशाल्लाह मैं 10 सितंबर को इंशाल्लाह मैं स्कूल मंगवाऊंगा, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। फिर ये नहीं कहना क्योंकि फिर मैं कॉपी के मार्क्स दूंगा, फिर एग्जाम में ये नहीं कहना कि मार्क्स क्यों नहीं, जिसकी कॉपी जैसी होगी उसी हिसाब से मैं मार्क्स दूंगा। डन, तो बातें क्लियर है? ओके, अच्छा, why any compound do not conduct electricity in solid state, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में होता है एनी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मैंने आपको लिखवाया था दे ओनली कंडक्ट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, यानी कि सिर्फ किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक्वस और मोल्टन स्टेट में, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सर 1 मिनट। Done. Why any compound do not conduct electricity in solid state? Because particles are closely packed together. Because particles are closely packed together, they have no free or mobile ions. In solid state, particles are closely packed together and they have no free or done. देखो ये सॉलिड स्टेट की एक डायग्राम सर है, फ्री और मोबाइल मोबाइल जो आप यूज करते हैं, फ्री और मोबाइल आएंगे, अभी समझाता हूँ सारी बात। तो ओके, लुक इन द डायग्राम। देखो होता है क्या, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स, देखो ये मैंने बनाया क्लोजली पैक्ड है ना, अब इसमें से कुछ पास नहीं हो सकती। जिस तरह से आपको मैं कह वॉल से अपना हैंड को आप पास करो किसी भी, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप आपके पास अभी क्या है, चेयर पे बैठे होंगे, टेबल होगा, ठीक है, मैं कहूँ टेबल से अपने हैंड को पास करो, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, पास नहीं हो सकता। इसी तरह मैं एक टब में वाटर रखता हूँ और कहूँ वाटर से हैंड पास करो, आप बिल्कुल कर सकते हैं वाटर से हैंड पास, वाटर के अंदर हैंड भी चला जाएगा आपका, क्योंकि सब पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह गैसेस स्टेट में जैसे पार्टिकल्स और ज्यादा दूर होता है, आप इजीली हैंड मूव कर सकते हो एयर में, क्लियर। तो देखो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट, तो आपने क्या बताना है, आयंस डू नॉट फ्री टू मूव, यानी आयंस मूव नहीं कर सकता। किसी आयंस की जगह किसकी बात लिख दी, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बात लिख देते हैं, आयंस की जगह किसका नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। तो आपने पूरा सही किया हो, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन कर दिया, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। खास तौर पे याद रखना, आयनिक कंपाउंड में जब भी पूछे तो आप किसके थ्रू बताओगे, किसके रेफरेंस से बताओगे, आयंस के रेफरेंस से बताना है, इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से कभी भी नहीं बताना। क्लियर, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, देखो फर्स्ट आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द, क्या मैंने लिखा यहाँ पे CO2, NaCl, MgO, like CH4। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें से कौन सी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है?
आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ डू आइडेंटिफाई द केमिकल बॉन्डिंग? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है? तो आइडेंटिफाई के देखो सिंपल मैंने आपको मेथड बताया, जो नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था, एनी कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल नॉन। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें से कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड है? तो आप बिल्कुल बता सकते हो, बहुत इजी। आपने कहा कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। इट मीन सर ने हमें बताया था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल्स में होते हैं, दोनों नॉन मेटल। इट मीन ये तो आयनिक कंपाउंड नहीं है। पता नहीं कौन सा कंपाउंड, अभी हमें नहीं पता, बट हमें ये बात पता चल गई कि CO2 जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। NaCl हमने देखा, सोडियम इज द मेटल एंड क्लोरीन इज द नॉन मेटल। बिल्कुल मेरी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है ये, जो मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। इट मींस ये आयनिक कंपाउंड है। आप बिल्कुल बताओगे सर ये आयनिक कंपाउंड है। मैं पूछूंगा कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, तो आप बताओगे सर सोडियम इज द मेटल एंड क्लोरीन इज द नॉन मेटल, दैट्स व्हाई इट इज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने देखा मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, इट मींस ये भी आयनिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट आ जाओ हमारे CH4। आपने देखा कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर? कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने आयनिक कंपाउंड को? ये लिखें ये Sir, एग्जाम्पल metals and non-metals. बिल्कुल ये लिखें ये एग्जाम्पल में साफ सुथरे तरीके से, जल्दी से हरी अप कॉपी करें। डन? डन बेटा? ओके Yes, sir. गुड। ओके नाउ वी स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप लोगों ने किया है कभी हाउ टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड? पढ़ा है इससे पहले हाउ टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, कैसे फॉर्म होते हैं? नो सर। ओके फर्स्ट राइट द No, sir. formation of simple, we take the simple compound lithium fluoride. How to form the lithium fluoride? ठीक है, formation of lithium fluoride. How to identify the types of bonding? We know that lithium is a metal and fluorine is a non-metal. Lithium belongs to the group number 1 and fluorine belongs to the group number 7. So in first step, we draw the electronic configuration. How? Lithium atomic number 3. So it's having 2 electrons first shell. And how many electrons outer shell? 1 electron. And other one element is fluorine. Fluorine atomic number 9. How many electrons in first shell? 2 electrons. And how many electrons in outer shell? 7 electrons. Okay. क्या ये स्टेबल फॉर्म में है हमारे पास? नहीं है स्टेबल फॉर्म में, बिकॉज हमें पता है कि जो शेल होते हैं, मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा K, L, M एंड N। तो स्टेबल फॉर्म क्या होता है हमारे पास? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन के शेल है हमें पता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में 8 और इसमें 8 या 18 और इसमें कितने होते हैं हमारे पास? 32 होते हैं। तो आप देखो हमारे पास जो शेल है, के शेल तो स्टेबल है, फर्स्ट शेल स्टेबल है, के बाद कौन सा? L
L इज अनस्टेबल। यहाँ पे आ जाओ, K स्टेबल है और L क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है। ठीक है, अब बताओ L शेल को जो है लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है स्टेबल होने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है किसी से? कोई से 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 1। तो लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लोरीन को डोनेट कर देता है, अपना इस एल शेल को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है लिथियम। अब नाउ लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है लिथियम ने? बिल्कुल किया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. 1 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपका तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसके लिए आपने ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज आपने मार्क कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ किससे, फ्लोरीन पे। फ्लोरीन F, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में इसके कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिथियम से गेन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको कहा था कि क्या चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, डेट से भी राइट हियर -1। तो अब ये कहलाएगा फ्लोराइड आयन, नॉट फ्लोरीन, और ये क्या कहलाएगा, लिथियम आयन। क्लियर? एनी क्वेश्चन? अगर किसी को यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ ले ताकि मैं आगे जाऊं। No, sir. समझ आ गई. ऑल ऑफ यू क्लियर each and Yes, everything? sir. Good. Yes. Very good. Okay. ड्रॉ द रिएक्टेंट। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये सपोज ये हमारे बात को हो गया ना, इसको प्रोडक्ट कंसीडर कर लो आप, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसको क्या कन्वर्ट सपोज कर लो आप रिएक्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ द रिएक्टेंट साइड। मैं भी कंप्लीट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूँ। पहला क्या है हमारे लिथियम, हाउ मेनी शेल इन लिथियम, 1 and 2 शेल। और अदर वन एलिमेंट इज फ्लोरीन F। ठीक है, हाउ मेनी शेल इन फ्लोरीन, सिमिलर 2 शेल। अच्छा, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हमेशा डॉट एंड क्रॉस पे शो करना होता है। इलेक्ट्रॉन किस पे शो करना था, डॉट एंड क्रॉस। यानी कि मैंने लिथियम के इलेक्ट्रॉन को किससे शो कर रहा हूँ, सपोज में क्रॉस से। फर्स्ट शेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट की। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज द आउटर शेल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्रॉस आ गया। ठीक है, वी हैव ओनली 2 शेल इन lithium and other one is fluorine. Fluorine, how many electron in first shell, 2 electrons. तो एक को डॉट से शो करना है तो दूसरे को किससे शो करना है, तो क्रॉस से। तो ये डॉट से एक 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया फर्स्ट शेल में। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? इट इज आवर रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट था। देख लो जो रिएक्टेंट मैंने बताया, लिथियम फर्स्ट शेल में 2 electrons and last one is 1. इसी फ्लोरीन फर्स्ट शेल having 2 electrons and last शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 electrons। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे चले प्रोडक्ट बनाने। अब देखो होता क्या है, हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करेगा, ये जो है लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर देता है, फ्लोरीन को डोनेट कर देता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब भी इसको प्रोडक्ट बनाएंगे ना, याद रखना किससे बनाना, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में बनाना। आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना, फर्स्ट हमारे पास क्या आता, लिथियम। लिथियम लिखा आपने, हाउ मेनी शेल लिथियम। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद कितने शेल रहेगा, ओनली 1 शेल। 1 शेल आपने बना दिया और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
डन। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट, फ्लोरीन, ब्रैकेट आपने यहाँ पे लिखा F, फ्लोरीन एटम। हाउ मेनी शेल इन फ्लोरीन? 1 शेल एंड 2 शेल। तो अब यहाँ पे 2 शेल बना दें, 1 शेल एंड अदर 1 शेल, 2 शेल। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स पुट करना है। हमें पता है लिथियम के जो प्रोडक्ट साइड पे थे कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 1 सॉरी क्रॉस से शो करना है, ठीक है, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब लिथियम पे चार्ज किया तो पॉजिटिव वन, तो आप ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज लगाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए फ्लोराइड पे। फ्लोराइड पे क्या था प्रोडक्ट पे हमारे? फर्स्ट शेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2, एंड outer shell having how many electron? 8 electron। तो हमने 8 किया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो फ्लोरीन के अपने थे। एक इसने क्या किया, गेन किया, किससे? फ्रॉम लिथियम। इसने लिथियम से गेन किया। डेट्स में आप क्या किससे शो करोगे? उस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करोगे। ये फ्लोरीन के अपने जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन से 7 थे, बट एक इसने लिथियम से गेन किया, डेट से वह हमने इसको किससे शो किया? क्रॉस से शो किया, कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है इसने लिथियम से गेन किया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, डेट से यहाँ पे क्या चार्ज लगा दिया आपने? नेगेटिव चार्ज। और आप नीचे लिख दो LiF। तो ये आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई लिथियम फ्लोराइड की। यस, एनी प्रॉब्लम एनीवन? सबको बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है, एनी कंफ्यूजन तो आप अभी पूछ ले मुझसे। हरिए, यस बेटा। नो सर। सिर्फ जही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी समीन, कीरत, इंशा, शादमान। No, sir. No questions. No question. क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अच्छा, इसको कॉपी करें। Done, sir.